Sir, you have to start. Sorry. So you can start, sir. All right. Sure. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm sure you're getting my voice. My name is myself is Mohammed Gibran bin Yusuf, and I'm working as a head of pharmacy services at NICVT, which is called National Institute of Cardiovascular Diseases, Pakistan. First of all, I'm thankful to the Shifa International team, especially Salva, Rehan, and all the team for inviting me to share some of my experience working in public sector hospitals. So the topic is quality improvement in patient safety, lesson learned from the public sector hospital pharmacy services. So let's start the presentation now. First of all, disclosure, I have no association with any kind of financial or any kind of commercial support in that respect. This is my disclosure. And the learning objective, which is already shared in the flyer, is the challenges versus opportunities, the significant role of pharmacists. You can think beyond Sorry, your sorry, sir, to interrupt you, sir. Because there are multiple comments like their sound is low. Might be there are some issues with their hardware. लेकिन सर if we can look into it कि आवाज थोड़ी सी ऊंची हो जाए सर. सर साउंड की क्वालिटी वॉइस कम है सर, वॉइस लो है सर आपकी. Okay, let me share now check my voice is clear. Yes sir, it's Uh, better now. It's better now. Are you Yes getting sir. now? Okay, shall we start with the learning objectives, the Yes sir. challenges versus opportunities, and the significant role of the pharmacist, think beyond the limits, and the gaps, and to fill the efficiency in the system. So this is the learning objectives of this today's presentation. And the contents, including is the land of opportunities, which is called the public sector hospitals, overview and few initiatives we have taken, and how the pharmacy can deliver the services in current situation and scenarios, the measures and contractive actions we have taken, then and the lesson learned and the way forward. So the main important thing is SWOT analysis, the strength, weakness, opportunity and threats. So the whole presentation and whole working and experience is evolved around the SWOT analysis. So I always share this slide that we have to develop the work and life balance between our work and the life. And I believe on it. My career, if my career boosts, then definitely my family and everything will become boost. So I have to, so my commitment, if my commitment with the work is good, is promising, then definitely I am going to facilitate my family accordingly. So work and life balance is important, but the priority is like once we are working or significantly, then definitely the family definitely getting the betterment. So for every kind of business, every kind of services, the most important thing is you have to develop the goals and objectives. You have the capacity, you have the knowledge, and you have the professionalism. And if you are talking about the pharmacy services, it's all about the products and services we are providing. So the thumb rule of every kind of services and business: know yourself, know your business, and know your competitors, who you are and what is your strength. You are a pharmacist, and what kind of your strength you have and how you can facilitate the patient and your services. This is important. So challenges what we faced in this public sector hospital is the most important thing is the critical to change. यहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है, वो सब ये कहते हैं I know well, मुझे आपसे ज़्यादा पता है, you don't know, आपको कुछ नहीं पता. देर इज रूटीन सिस्टम, ये सब इसी तरीके से चल रहा होता है और ये जो आप काम कर रहे हैं इट विल नॉट वर्क. तो मेन जो है माइंडसेट जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल थ्रू आउट पाकिस्तान हमें मिलता है और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मिलता है, वो माइंडसेट है जिसमें लीडरशिप की बहुत ज़्यादा रोल होता है कि वो किस तरीके से चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. तो a brief introduction to NICVD. I'm sure everyone knows about the NICVD, National Institute of Cardiovascular Diseases, is the largest cardiac network of the world.
because what we are dealing is the number of patients and the volume जो हम कर रहे हैं, geography and geographies, cabbage and other services जो provide कर रहे हैं, उसके numbers comparatively बहुत high हैं. Is basically the 2000 bedded plus cardiac facility है, 10 plus हमारे पास satellite units हैं, satellite hospitals हैं in different provinces of Sindh, different district of Sindh, और 26 plus हमारे पास chest pain units हो गए in different areas of Karachi, and this is totally free of cost inpatient and outpatient care of medicine. So जब मुझे चांस मिला टू वर्क इन टू जॉइन द NICVT, तो यहाँ पे मैंने जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव ये था कि आई हैव टू सर्च, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, सो उन चैलेंजेस में चांस और अपनी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना था. तो सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव टू डेवलप, जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैव टू डेवलप माई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. सो my prior important goal was to establish a state of the art pharmacy services at NICVT, and the objectives below that to start the BPRR, which is called the business process review and reengineering of the current processes and identify the gaps. Number two is phase-wise implementation of pharmacy functionalities and services as per the management approval and priority metrics. इम्पॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट आपको गोल एस्टैब्लिश करना होता है कोई भी काम करने के लिए, कि आपका एक सेट गोल हो ताकि उसको अचीव करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिविटी आप डिफाइन करते हैं. नो द प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट, नोइंग द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इश्यूज क्या हैं और उस इश्यूज को रेक्टिफाई कैसे करना है, उसकी प्लानिंग किस तरीके से करनी है, ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी आपकी मेथोडोलॉजी में डिफाइन होती है. सो once we started this BPRR, business process review and of the current processes and identify the gaps, we have find out there is no actual pharmacy system in place, no functionalities, material management and usage process totally out of control of pharmacy in patient areas, totally ignored in respect of pharmacy, a pharmacist coverage, satellite pharmacy concept नहीं था, फार्मासिस्ट के क्लिनिकल राउंड मौजूद नहीं थे, स्टोर स्टॉक नहीं था, नार्कोटिक कंट्रोल नहीं था, ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विसेज नॉट अवेलेबल, स्ट्रॉयल एंड नॉन स्ट्रॉयल एरिया डेवलप नहीं था, आउट पेशेंट सर्विसेज में भी कोई क्यू मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, फार्मेसी सिस्टम जो मॉड्यूल होता है ERP वो मौजूद नहीं था. रीज़न ये था कि यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया एट द टाइम वहाँ पे सिर्फ एक फार्मासिस्ट थे, चीफ फार्मासिस्ट, और उसके बाद रिसेंटली जो ज्वाइन किए थे 3 to 4 फार्मासिस्ट ने ज्वाइन किया था, और बाकी ये सिर्फ रूटीन प्रैक्टिसेस ही थी. So objective two was once we have reviewed, we have done this with BPR, then we have shared with the management that we have to go for the phase-wise implementation of pharmacy functionalities and services according to the priority metrics. So we have shared the centralized pharmacy concept, pharmacy, and all satellite pharmacy concept according to that. कि जी इसके process flows क्या होंगे, इसके responsibilities कैसे होंगी. We have shared everything, और इसको gradually इसकी implementation कैसे होगी. Along with that, we have developed the organogram, a proper organogram of pharmacy. पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में आपको पता है कि ऐसा कोई ऑर्गेनोग्राम स्ट्रक्चर नहीं होता, वहाँ पे एक चीफ फार्मासिस्ट होता है, फार्मासिस्ट दैट्स इट. सो वी हैव अप्रूव्ड ऑर्गेनोग्राम जिसमें हमने स्पेशलिटीज डेवलप की, डिविजन्स डेवलप किए फार्मेसी के, और उसमें लेयरिंग और हायरार्की प्रॉपर डेवलप की ताकि फार्मासिस्ट की ग्रोथ को इंश्योर कर सकें. और ये करना इट्स नॉट अ इजी जॉब, क्योंकि ये आपके गवर्निंग बॉडी से अप्रूवल हैं, बाकी तमाम चीज़ें मिनिस्ट्री से अप्रूवल हैं, budgeting exercise. There are so many hurdles in that, but we tried our level best. So many of it we achieve at this moment, but gradually हमने ये तमाम चीजें approve कराई. So the first step we have developed, हमें एक role model pharmacy develop करना था कि pharmacy setup होता क्या है. We have developed the executive clinic pharmacy. First setup हमारे initiative ये था जिसमें हमने फार्मेसी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया, जिसमें सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज थी कंप्लीट पेशेंट प्रोफाइलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, ड्रग यूसेज, इंटरेक्शंस, ड्रग डिक्शनरीज, लॉट एंड एक्सपायरी, ट्रेसेबिलिटी, और बाकी तमाम जो इसके फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया. फार्मेसी की स्टाफिंग, फार्मेसी प्लस टेक्नीशियन का मॉडल डेवलप किया, और उससे एक स्टेट ऑफ द आर्ट फार्मेसी हमने शोकेस किया ताकि लोगों को आइडिया हो कि पब्लिक सेक्टर में फार्मेसी सेटअप्स होते क्या हैं. सो आफ्टर दैट this pharmacy has been shaped up in like that.
फार्मेसी के थोड़ा सा उसकी एम्बियंस, उसकी प्रेजेंटेशन, फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी, पेशेंट काउंसलिंग एंड हाउ द ड्रग लेबल्स एंड पेशेंट रिसिप्ट शुड बी अवेलेबल, कि किस तरीके से हाउ द मेडिकेशन शुड बी यूज बाय द पेशेंट, और उसकी हमने फिर कन्वर्जन उर्दू और इंग्लिश में, और इसके बाद टिक मेथोडोलॉजी को भी हमने अडॉप्ट करवाया ताकि लोगों के लिए, पेशेंट के लिए आसानी हो। अच्छा, वन ऑफ द मेजर फैक्टर हमने जब ये एग्जीक्यूटिव फार्मेसी किया, जो हमारे मेजर पूल है विच इज कॉल्ड द जनरल एंड ओपीडी फार्मेसी, जिसका पेशेंट वॉल्यूम 2000 पेशेंट्स पर डे हमारे हमारे हम लोग इंटरटेन करते हैं यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ये था कि जब व्हेन आई जॉइन, तो मेडिकेशंस जो थी वो लोगों को उनकी झोलियों में दी जाती थी, लिटरली उनकी झोलियों में दी जाती थी। उनके पास में शॉपर्स होते थे, ना बैग्स होते थे, ना ब्रीसल बैग्स होते थे, ना कोई बाकी लेबलिंग वगैरह को तो कोई कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं था। सो व्हाट we have developed, once we developed the executive pharmacy to general OPD pharmacy में we have deployed the same methodology, और वहाँ पे हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया विद द प्रॉपर लेबलिंग, पैकेजिंग एंड द काउंसलिंग काउंटर्स फॉर। मैं जो फर्स्ट पिक्चर है उस पर क्लस्टर ऑफ पेशेंट का देख सकते हैं, उसको क्यों उसको मैनेज करना, और इन तमाम चीज़ों को सेपरेटली पेशेंट काउंसलिंग के बूथ्स बनाना और लोगों को इंटरेक्ट करना, उसके अकॉर्डिंगली समझाना, ये तमाम हमने इसको बिल्कुल एग्जीक्यूटिव फार्मेसी वाली रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पे ओपीडी फार्मेसी भी की, ताकि जो हमारे पेशेंट्स हैं, ऑल द पेशेंट्स शुड बी गेटिंग द सिमिलर सर्विसेज ऑफ द फार्मेसी। इन पेशेंट एंड क्रिटिकल केयर फार्मेसी सर्विसेज, फिर हम उसकी तरफ हमने मूव किया, और हमने वहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की, कि शोकेस की कि फार्मेसी सर्विसेज इन पेशेंट होनी कैसी चाहिए। So we have formed this critical care pharmacy, which is catering all the critical care wards, including the CCUs, ICUs, and the cath labs, and all the areas, functional areas जितने भी हैं critical care areas की pharmacy को हमने ये एक बनाया सेंट्रलाइज फार्मेसी, और इस एस्पेक्ट से यहाँ पे ये इसको शेप अप किया। पेशेंट फार्मासिस्ट को हमने एंगेज किया, उनकी उनकी कॉम्पिटेंसी मॉडल को इन्हांस किया, और इसके साथ जो क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम है इसके साथ टोटली अटैच किया, ताकि हमारी ऑपरेशनल और क्लिनिकल सर्विसेज एक ही जगह पे मौजूद रहें। सो आफ्टर देन दैट हमने फिर उसी का आईबीपीबी और सर्जिकल आईसीयू, आपने शिफा इंटरनेशनल या जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो डेफिनेटली आपके सर्जिकल आईबीपीबी प्रोग्राम इन प्लेस है, स्क्रिल प्रिपरेशन जो है इन प्लेस है। सो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में बहुत रेयर है ये फंक्शनैलिटी। सो वी हैव डेवलप द लैमिना, हमने एक स्क्रिल एरिया कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लॉन्च किया, लैमिना फ्लो पुट्स हमने लगाए, और व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम ऑल काइंड ऑफ कार्डियोप्लेजिया, डेल्निटोकार्डियोप्लेजिया, पोटेशियम प्रिपरेशन और बाकी आईवीपीबी जितनी भी ड्रग्स हैं उसको हम यहाँ पे बल्क प्रिपेयर करके, या फिर एज पर द ऑर्डर हम यहाँ पे प्रिपेयर करके और ये हम दे रहे हैं। क्यों? जो मैनेजमेंट को समझाने का जो सबसे बड़ा मकसद था, वाई फार्मेसी इज इम्पॉर्टेंट। फार्मेसी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू आर गेटिंग द क्वालिटी सर्विसेज फ्रॉम द फार्मासिस्ट, नॉट ओनली द क्वालिटी सर्विसेज। आपके तो जो गोल हैं, जो केपीआईज हैं, लेंथ ऑफ स्टे है पेशेंट का, जो आपके पिल्फरेज के इश्यूज हैं, ये तमाम चीज़ें फार्मेसी की कंट्रोल की वजह से ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, और पेशेंट के बेटर आउटकम, फिजिशियन और फार्मासिस्ट का या नर्सिंग का एक ही रोल है कि पेशेंट के बेनिफिट में, पेशेंट का बेटर आउटकम के लिए, तो फार्मेसी इज डेफिनेटली द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि विदाउट फार्मेसी फार्मासिस्ट जो है यू कुड नॉट अचीव योर गोल। ये चीज़ें एम्फेसाइज की, समझाई, तो उसके बाद वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, एंड वी हैव ओपन सर्टेन विंडोज, एंड हमारे डोर्स ओपन होते चले गए हमारे इंटरेक्शन की वजह से। वाई? बिकॉज इन सब एक्टिविटीज से पहले हमने जो काम शुरू किया, तो वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। वी हैव डेवलप्ड द टेक होम फार्मेसी एज वेल। टेक होम फार्मेसी का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर कि ये किसी उसमें पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। वी हैव डेवलप्ड अ प्रॉपर प्रोसेस फ्लो, हाउ द पेशेंट would be reached to the take home pharmacy, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, उसको हम शॉर्टर कैसे करेंगे, उस टाइम पीरियड को, उसका टर्न अराउंड टाइम कैसे रिड्यूस करेंगे, हाउ वी गेट द इंफॉर्मेशन, एंड हाउ द पेशेंट विल गेट द मेडिकेशन ऑन टाइम आफ्टर डिस्चार्ज। तो हमने इसको पूरा प्रोसेस फ्लो, इसको टेक होम प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और उसके बाद हमने टेक होम फार्मेसी
बना के, और उसके बाद ये पेशेंट को प्रॉपरली काउंसलिंग, क्योंकि अगर आपके रीएडमिशन जब तक हम टेक होम से कंट्रोल नहीं करेंगे तो रीएडमिशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हाउ टू यूज द मेडिकेशन। सो हमने बजाय इसके कि मेड टू बेड्स प्रोजेक्ट करते हैं, हमने टेक होम फार्मेसी का कॉन्सेप्ट किया, which is available 24/7 to facilitate our patients. Now the most important thing, ये तमाम जितने भी आपने अपने विजुअल्स देखे, वो तमाम चीज़ें वो थी कि इट टेक्स सो मच टाइम, ईयर्स के जो आपके फार्मेसी की शेप अप करने में कुछ टाइम लगा हमें। Once we started, once we joined, I got an opportunity to make a team of pharmacists. तो हमारे brilliant pharmacists जो मौजूद हैं, तो हमने सबसे साथ साथ simultaneously executive pharmacy की launching के aspect पे हमने पूरा clinical pharmacy program launch किया। बट क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम, यू नो इट वेल, के रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है कंसल्टेंट में, फिजिशियंस में, या अलाइड हेल्थ में, फार्मेसी या फार्मासिस्ट के एस्पेक्ट से। सो हमने जो उनको इंश्योर किया कि वी आर हेयर टू हेल्प योर पेशेंट, कि हम आपकी प्रॉपर डोसेज और उन चीज़ों को इंश्योर करेंगे, आपके हेल्पिंग हैंड मौजूद होंगे। वी नेवर चैलेंज द फिजिशियन कि जी आप गलत लिख रहे हैं या आप गलत वो है, बट वी फैसिलिटेट देम इन अ बेटर वे। So we have developed the clinical pharmacy program, and we have developed the roadmap how we do that. We started from the critical care units, CCUs covers किए, surgical ICU, pediatric ICU, और उसके बाद स्पेशल केयर यूनिट्स जिसमें सर्जिकल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हैं, और इसके अलावा वार्ड्स हम एक्सपेंड कर चुके हैं। तो वी हैव अ कवरेज, वी हैव 14 इन नंबर क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं जो कि फिजिशियंस के साथ राउंड करते हैं, उनके अपने केपीआईज मौजूद हैं, और उन केपीआईज को, डैशबोर्ड इंडिकेटर्स को हम प्रॉपरली शेयर करते हैं। वी हैव डेवलप द एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, और उसमें हम लोग प्रॉपरली जो है अपने केपीआईज को डिस्कस करते हैं, और जहाँ पे वेरिएंस होता है हम उन चीज़ों को टारगेट करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हमारी ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं, जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट वार्ड टू वार्ड जाके अलाइड हेल्थ ऑफ फिजिशियन के साथ इंटरेक्ट करके जो भी हमने गैप या डेफिशिएंसीज फाइंड आउट होती हैं, वहाँ पे वो उनसे शेयर करते हैं, ताकि उन चीज़ों को, उन डेफिशिएंसीज को ओवरकम किया जा सके। तो दिस वाज द ब्रिलियंट एंड इनिशिएटिव स्टेप जो हमने along with that clinical pharmacy लॉन्च किया। तो फार्मेसी जो एक्सेप्टेंस जो थी वो हॉस्पिटल में और मैनेजमेंट में और जो क्लिनिकल ग्रुप है उसमें डेवलप होना शुरू हुई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ फार्मासिस्ट जो है वो अपनी नॉलेज बेस और अपनी क्लिनिकल सर्विसेज से जो है डेवलप किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम दवाई डिस्पेंस करते रहें। सो दीज आर द फ्यू जो हमारे डेटा कलेक्शन, जो हमारे रिकॉर्डिंग है उसके एस्पेक्ट से, टाइप ऑफ इंटरवेंशंस के डिवीजन है, डोज एडजस्टमेंट हमारा डेफिनेटली लार्जर पूल होता है। उसके बाद जो है फार्माकोथेरेपेटिक रिकमेंडेशंस हैं, एंडो थेरेपेटिक, और ये तमाम रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, ये तमाम चीज़ें नंबर, ये कुछ, ये 1 मंथ की हमारे इस तरह का डेटा है जो कि मैं आपसे जस्ट फॉर द रेफरेंस शो कर रहा हूँ। इसी तरीके से हमने डिवाइड आउट जो चीज़ें की हुई हैं वार्ड वाइज, और उसके हिसाब से फार्मासिस्ट वाइज, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो जो उसकी परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए उसकी केपीआईज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके इंटरवेंशंस और उसके अगेंस्ट, उस इंटरवेंशन के अगेंस्ट क्या एक्शंस लिए गए और उस गैप्स को फिल किया गया या नहीं, इसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मौजूद है। तो वी आर कंट्रोलिंग विद दैट आवर डेटा। So 2018 to 2023, we have number of interventions in year. हमारे पास almost 10,000 plus हम interventions कर चुके हैं। Intervention rate per prescription हमारा 3+4+ होता है। Intervention rate per patient जो है 14 patients में हमें एक intervention मिल जाती है, जिसको हम अच्छा ग्रेजुअली जो है, शुरू में हमारा जब हमने स्टार्ट किया तो इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा थी, फिर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करते रहे, उन चीज़ों को कवर करते रहे, तो जो हमारे रिपीटेड इश्यूज जो थे वो सॉल्व होने शुरू हुए, और हमारे इंटरवेंशंस ग्रेजुअली रिड्यूस होने शुरू हुए। तो यही हमारी केपीआईज होते हैं कि जो आपके जो लार्जेस्ट पूल है, जो प्रायोरिटी मैट्रिक्स के एस्पेक्ट से हायर आपके रेट में जो आते हैं, या परीटो एनालिसिस जिसको कहते हैं 80-20 रूल में, तो जो 20% ऑफ द इश्यूज क्रिएट 80% ऑफ द प्रॉब्लम, तो उसको, या वाइस वर्सा, तो हमने उनको टारगेट किया, उसको हमने पूरी मेथोडोलॉजी अप्लाई की, विच इज़ कॉल्ड इशिकावा डायग्राम के थ्रू, जो जिसको फिश बोन डायग्राम कहते हैं, मैन मेथड मटेरियल, और इस मैकेनिज्म के एस्पेक्ट से हमने जो जो इश्यूज इसके हिसाब से वो प्लॉट करते हैं। और ये हमारे क्वालिटी प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ें शामिल हैं कि जिसमें हम जो हाई प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं, जो क्रॉनिक इश्यूज होते हैं, उसके
उसके प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करते हैं और उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्टिविटी ऑफ फार्मासिस्ट जिसका मुझे बहुत फख्र है, विच इज कॉल्ड द फार्मासिस्ट मैनेजमेंट एंटी कोगुलेशन क्लिनिक्स। प्रीवियसली वंस वी ज्वाइन तो एक आईएनआर क्लिनिक रन होती थी जो कि फिजिशियंस रन करते थे, और हमने उसमें फार्मासिस्ट को इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्वमेंट ये कि हमारे पास 8 क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं जो कि एंटी कोगुलेशन सर्टिफाइड, हमने सर्टिफिकेशन करवाई उनकी। दे बेसिकली उन्होंने खुद से की, इनिशिएटिव खुद लिया, और उसके बाद फिर वी हैव स्टार्टेड दिस। पहले हमने ज्वाइन इन किया उनके साथ, फिजिशियंस के साथ। देन ग्रेजुअली हुआ यही कि फार्मासिस्ट के जब रोल इनहैंस होना शुरू हुआ तो वो दिस इज टोटली रन बाय फार्मासिस्ट नाउ। Pharmacists run anticoagulation clinic, and you cannot imagine the numbers we are dealing with it. It would be the largest anticoagulation clinic in the world, we can say. This is the overview. All the clinical जो हमारे anticoagulation pharmacists हैं वो directly engage होते हैं pharmacist patient से, और उनको जो ट्रैक करते हैं, उनका डेटा प्रोफाइल करते हैं, और उसके बाद उसकी उसकी जो वार्फरिन मैनेजमेंट है और आईएनआर वैल्यूज के एस्पेक्ट से उसकी जो डोज मैनेजमेंट है वो लॉन्ग टर्म करते हैं। तो जो हम इसके अलावा हमने इसके साथ टेली हेल्थ मैनेजमेंट भी लॉन्च किया है जो ऑन कॉल, क्योंकि नंबर इन कराची, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कराची, तो यहाँ पे 70% ऑफ द पेशेंट आउटसाइड कराची होते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑल द टाइम उनकी आईएनआर रिपोर्ट्स हमें मिल सकें। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप के एस्पेक्ट से लोगों को ज्वाइन किया हुआ है, या टेली हेल्थ का भी हमने एक मेंबर किया हुआ है जिसके एस्पेक्ट से वो 24/7 पेशेंट इंटरेक्ट करते हैं और अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं, और हम उनकी डोज मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। 43,000 प्लस पेशेंट जो है हम अभी एंटीकोगुलेशन क्लिनिक में हम पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं, या हमारे पेशेंट्स मौजूद हैं, एंड एवरेज इज 120 पेशेंट्स पर डे। हमारा 120 पेशेंट्स पर डे टोटली मैनेज बाय द फार्मासिस्ट। ये हमारे पास आउट पेशेंट भी हैं और इन पेशेंट्स रेफरल पेशेंट्स भी हैं। ये तमाम पेशेंट्स टोटली फार्मेसी मैनेज करती है, फार्मासिस्ट रन करते हैं। 70% हमारे पास ओल्ड क्लस्टर है जो कि हमारे पास फॉलोअप्स हैं, और एडिशन जो होता है वो 30% के एस्पेक्ट से होता है। आईएनआर के एस्पेक्ट पे अगर हम ड्रग इंफॉर्मेशन कॉल की एस्पेक्ट करें तो हम 200 प्लस कॉल्स जो है हम इन अ मंथ हम एंटरटेन करते हैं, जिसमें और उसके हिसाब से जो उसकी मैनेजमेंट होती है। जो हमारा मेजर चंक जो है दैट वाज 52% वॉल्व डिजीज और वॉल्व रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स होते हैं, बाकी आर्टिरियल फिब्रिलेशन या स्ट्रोक या थ्रोम्बस के पेशेंट्स हैं। और इसका डेटा कंपाइलेशन हमारी प्रॉपर होती है, तो वी कैन रिकॉल एनी टाइम, हम पेशेंट को वो डेटा सर्च कर सकते हैं, और इस एस्पेक्ट से हमारी तमाम मैनेजमेंट जो है हम अपनी ये तमाम डेटा भी जो है हमारे विद द मैनेजमेंट एंड द फिजिशियन शेयर होता है, ताकि उनको अपने पेशेंट्स की प्रोग्रेस पता चलती रहे। रजिस्ट्रेशन इसका पूरा प्रोसेस फ्लो डिज़ाइन है। हमारे पास 49 पेशेंट्स फीमेल पेशेंट होती हैं, 51% हमारे पास मेल है। वॉल रिप्लेसमेंट जो है ऑलमोस्ट, हम 1 मंथ डेटा की बात करूँ तो 60 पेशेंट से, वेलवुलर हार्ट डिजीज के 45 पेशेंट से, तो ऑलमोस्ट 50% प्लस जो हमारे पास वॉल से रिलेटेड पेशेंट्स हमारे पास इंटरटेन होते हैं। Now, this is all about the कराची सेगमेंट जहाँ पे हमने ये चीज़ें इनिशिएटिव की हैं। अच्छा, कराची में हमने इसके अलावा हमारे पास सेटेलाइट फार्मेसीज भी हैं, ईआर फार्मेसी भी हम मैनेज कर रहे हैं। मोर देन 8 सेटेलाइट फार्मेसीज कराची में मैनेज कर रहे हैं। नाउ आई हैव शेयर्ड विथ यू कि वी आर मैनेजिंग द 10 सेटेलाइट हॉस्पिटल्स की फार्मेसी मैनेज करती है। तो वन ऑफ द मेजर जो हमारा हॉस्पिटल है सेटेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, विच इज सक्कर हॉस्पिटल, जो कराची के बाद जो है जिसका नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सक्कर फार्मेसी भी इज टोटली मैनेज by the pharmacist, and it's like a beautiful hospital and beautiful pharmacy, because we have the pneumatic tube system here. All the जो wards connectivity हमारे पास वो है कि हम पेशेंट की ड्रग मेंटेन करते हैं, फॉर इन पेशेंट प्रिपेयर करते हैं, उसको बॉक्स करते हैं, और उसके बाद उसको कैप्सूल में डाल के उसको जिस जिस भी एरिया, जिस वार्ड में हमें उसको सेंड करनी है वहाँ पे वो पहुँचा दी जाती है। तो इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल हॉस्पिटल, एंड द फार्मेसी इज डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्किंग in all capacities, outpatient, inpatient, operation theaters, cath labs, and everything, totally managed by the pharmacy.
Another important hospital is Tendumot Khan pharmacy, जहाँ पे भी टोटली हमारा फार्मेसी का कवरेज बिल्कुल इसी तरीके से है. The same implementation of like Karachi, we are managing the satellite units like Sakkar, Tendumot Khan and Hyderabad. और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं. तो स्लोली ग्रेजुअली वहाँ पे तमाम चीज़ें दे आर डूइंग द क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम, दे आर मैनेजिंग एंटी कोगुलेशन क्लिनिक्स, and they are doing the complete inpatient and outpatient services, complete like Karachi, they are doing the same services. So pharmacy services now, the Pakistan's largest cardiac public sector hospital, basically pharmacy, free of cost pharmacy services. We have the clinical pharmacy services, anti-coagulation management, outpatient, inpatient, antimicrobial stewardship program, and telehealth anti-coagulation management system. हमारी पब्लिकेशंस भी जो है रेगुलरली हम अपने फार्मेसी न्यूज़ लेटर्स जो है वो शेयर करते रहते हैं. जो भी हमारी डेवलपमेंट है, रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, या जो इंटरनेशनल या लोकल जो हमारी प्रेजेंटेशंस हैं या जो हमारी सबमिशंस हैं इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, इन फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस, तो उसको हम पूरे अपने NICVD नेटवर्क से शेयर करते हैं और हमारे जो अलाइड सर्विसेज हैं या हमारी जो कम्युनिटी है फार्मेसी सर्विसेज उससे हम अटैच रहते हैं. How we do that? Tools to initiate the quality improvement, which is very important. How we did all this exercise. The most important thing in my knowledge and in my experience and in my expertise, the most important thing is data. Data analysis is very important. It's the key to do everything. आपके पास डेटा फॉर्म नहीं है, डेटा आपके पास नहीं है किसी चीज़ का, तो आप कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम उस डेटा में कितनी, आपके पास क्या चीज़ें किस फॉर्मेट में क्या क्या रिपोर्ट हो रही है. तो डेटा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद प्रोसेस मैपिंग. तो आपने प्रोसेस मैपिंग, उसकी डिविजन्स आपने करने हैं, आपने डिवाइड आउट करना है, फिर उसके उस एस्पेक्ट से प्लानिंग करनी है, विच इज कॉल्ड डिमैक, जो हम कहते हैं डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल. जो क्वालिटी प्रोजेक्ट्स में हम अगर लीन सिग्मा पे अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें ये पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमें ये तमाम चीज़ें टूल में अप्लाई करनी पड़ती हैं कि हम उसके डेटा हमारे पास मौजूद है तो उसकी प्रोसेस मैपिंग कैसे करेंगे, बेंचमार्किंग क्या है इंटरनेशनली जो है, उसकी उसकी लिमिटेशंस क्या है, इंटरनेशनली बेंचमार्किंग क्या है. You have to define that root cause analysis, which is one of the missing elements in all. In my experience, root cause analysis हमें हम नहीं कर पाते चीज़ों का. जो रूट कॉज एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोइंग द प्रॉब्लम, आपके 50% ऑफ द इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं. फिर आप सिर्फ 50% जो है अपने एक्शंस लेने होते हैं आपको रिजॉल्व करने के लिए. रूट कॉज एनालिसिस में भी डिफरेंट टूल्स अप्लाई होते हैं. इसमें 5 वाई होते हैं. इसके अलावा इशिकावा या फिशबोन डायग्राम होती है. इसके अलावा डिफरेंट टूल्स अलग हैं कि हाउ, अगर कोई इंसिडेंट हैपन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसके रूट कॉज क्या है. तो हम इन चीज़ों को अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर हम इसको फाइंड आउट, इसको अगर हम 100% अप्लाई नहीं करते तो हमें डिज़ायरेबल इफेक्ट्स नहीं मिल पाते. एंड इस पूरे स्टैट्स के प्रोसेस कंट्रोल, हाउ आपने ये सब चीज़ कर लिया, नाउ इसके प्रोसेस कंट्रोल किस तरीके से होंगे, हाउ यू वुड मेंटेन ऑल दैट, आप इसको कंटिन्यूटी में किस तरीके से लेके जाएंगे. तो फार्मेसी प्रोफेशन इज नाउ इज वेरी डायनामिक, इज वेरी चेंज्ड. अभी सारी चीज़ें जो हैं हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें रोल हमारा फार्मासिस्ट का क्या रह जाता है. अगर सारी चीज़ें आपके सिस्टम से कंट्रोल हो जाती हैं तो, या क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपके पास सिस्टम में आ जाते हैं, तो फार्मासिस्ट की इंटरवेंशंस कहाँ जाती हैं. तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं. तो फार्मासिस्ट को एट दिस मोमेंट जो है अपना रोल डिफाइन करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी होगी. अपने रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं, जो रीसेंट मॉडिफिकेशंस हैं, ऑटोमेशंस हैं, रोबोटिक्स हैं, इन तमाम चीज़ों से जब तक हम अलाइन नहीं करेंगे अपने आप को, तो हम मतलब हम बिल्कुल जो है पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाएंगे, बल्कि हम रिप्लेस हो जाएंगे न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से. सो वी हैव टू डेवलप आवर रोल इन ऑल द वे. लेसन लर्न व्हाट वी डिड इज, जो मेरे लिए एक्सपीरियंस था, यू वुड रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सपोर्ट. और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सपोर्ट उस वक्त आ सकती है जब तक आप अपना केस प्रॉपरली प्रेजेंट ना करें, आप उन पे इश्यूज उनके सामने लेकर आए.
For example, if you are dealing with the hospital pharmacy and you have no control over the store stock, over the medication dispensing, so how much you are contributing to losses, cost of poor quality किस तरीके से, pilferage कितना हो सकता है, पेशेंट को गलत मेडिकेशन देने से या उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ स्टे पेशेंट का क्यों बढ़ रहा है, इन्फेक्शन किस वजह से रेट हाई है। तो बहुत सारी चीजें, तो इस लीडरशिप को सपोर्ट करने के लिए आपने यू मस्ट हैव द डेटा, स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशंस कि why pharmacy is important. Effective communication. Communication is the key to success. All the time you have to communicate with your leadership, with your pharmacy group, with your allied services. All the time you have to go for the communication. If you go for the open communication, you will receive the responses from अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप तक कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर कम्युनिकेशन आपने स्टॉप कर दी मीन्स कि आपके पास जो प्रॉब्लम है आपके पास एग्जिस्ट रहेगा और आपकी सर्विसेज डिक्लाइनिंग की तरफ जाएगी। सो यू वुड हैव अ वेरी क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन among your healthcare team. Again, data driven decision making system. जितने भी हमने अभी तक यहाँ पे अचीव किया है, जो कुछ भी किया है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डेटा। हमने पहले किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले भी डेटा हमने ड्राइव किया है और उसकी प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के वक्त भी हमने उस डेटा को मेंटेन रखा है ताकि आपकी जब प्लानिंग फेस होता है और उसके बाद जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन फेस है और उसके बाद जो आउटकम फेस है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको मॉनिटरिंग की, डेटा मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। The most important thing is interprofessional collaboration. Interdisciplinary teamwork and collaboration can optimize the patient care and safety. This is very important. देखिए, antimicrobial stewardship program cannot done only by the pharmacy. You would have the ID physician, infectious disease physician चाहिए. You would require a infectious disease nurse. ID पूरी टीम require है. This is just an example कि अगर आप के पास डिसिप्लिनरी टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ आपने काम करना है तो यू वुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। इसमें सब इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी हाउस कीपिंग स्टाफ से लेके आपके रिसेप्शन से लेके आपका हर पर्सन का एक रोल है। जब तक आपकी इंटरेक्शन सबसे प्रॉपर नहीं है, यू डोंट हैव द प्रोसेस फ्लो प्रॉपर कि एक एक्टिविटी को स्टार्ट करने का स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे है और उसका एंड पॉइंट कहाँ पर है, एंड यू डोंट नो तो बीच में कितने प्रोसेसेस आ रहे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको टर्न अराउंड टाइम कभी अचीव प्रॉपर नहीं होगा। आप किसी भी एक्टिविटी को जो प्रोसेस री इंजीनियरिंग में आप करते हैं तो हर चीज़ का प्रोसेस फ्लो बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, कौन कहाँ कहाँ आपको डिसीशंस लेने हैं, यस नो। अगर डिसीजन यस होता है तो उसके ये प्रोज एंड कॉन्स है, और डिसीजन अगर नहीं होता नो तो उसके ये वाले इश्यूज हैं, और कौन कौन से प्रोसेसेस आपके रिपीटेड हैं। तो आप इन चीज़ों को कट डाउन करेंगे तो आपका टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस होता है। इसी तरीके से आपके कोलैबोरेशन के समटाइम्स मिसकम्युनिकेशन हैं या फिर आपने प्रॉपर आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन नहीं है तो उसकी वजह से आप डिजायरेबल रिजल्ट नहीं ले सकते। पेशेंट एंगेजमेंट, देखिए, वन ऑफ द मेजर की आप यू कुड नॉट अचीव एनीथिंग विदाउट द पेशेंट एंगेजमेंट। अगर हम आईएनआर की बात करें, पेशेंट अगर हमारे साथ एग्री नहीं कर रहा, हमसे कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो वो उसके आपके पे डिजायरेबल आईएनआर रेंज आप अचीव नहीं कर सकते। इसी तरीके से आउट पेशेंट पे जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पे मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है और इफ यू आर नॉट गोइंग टू कन्विंस देम, आप कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर नहीं है, उनकी काउंसलिंग प्रॉपर नहीं है, तो यू वुड नॉट गेट द डिजायरेबल आउटकम। पेशेंट जो है रिविजिट होगा, यहाँ पे दोबारा एडमिशन के लिए आएगा, ये कैथ लैब में आपके पास दोबारा एडमिशन आएगा, पेशेंट हार्म भी है और आप अपना रोल भी प्रॉपर नहीं कर रहे। यू मस्ट हैव द प्रॉपर एंगेजमेंट। सो आपके उसके फ्लायर्स हैं, उसके कम्युनिकेशन है, अभी मॉडर्न टूल में तो आपके पास पेशेंट पूल मौजूद है, तो आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारी कम्युनिकेशन वे, उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर सकते हैं, आप उसकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी विदाउट टेक्नोलॉजी एट दिस मोमेंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो टेक्नोलॉजी और इसको इवॉल्व करना कि जी आपको इससे क्या फायदा हो सकता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये लेसन लर्न है। And the way forward is pharmacist recognition. My way forward and my objective and my team's objective is for the pharmacist recognition in all platforms. Their certification and knowledge upgradation is very important कि जी आप अपनी certification करें different areas में।
हम एक INR की बात करते हैं, कि पॉपुलेशन की बात करते हैं, अब स्ट्रोक का भी हमारे पास एक प्रोग्राम है। तो वहाँ पे उस तरफ अगर हम फार्मासिस्ट की इंगेजमेंट करते हैं तो उनको क्या सेट स्किल्स रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से क्या उनकी नॉलेज अपग्रेड या उनकी सर्टिफिकेशन अगर कोई रिक्वायर है तो सर्च करते हैं, और उनके एक्सपोजर्स एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, वन ऑफ द मेजर की जो मेरा वर्किंग स्टाइल है वो ये है कि यू शुड एम्पावर योर टीम। आपकी जो टीम है, विदाउट टीम यू आर नथिंग। आप अपनी टीम को एम्पावर करें, वो रिजल्ट लेकर आते हैं। वो एम्पावर होते हैं, उनके पास एक कॉन्फिडेंस होता है, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम भी करते हैं। वो ऐसा काम करते हैं कि वो जिसमें उनकी सेटिस्फैक्शन होती है, उसमें हमारी सेटिस्फैक्शन होती है। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अपनी टीम को एम्पावर किया जाए, कि वो जाके फिर वो सारे काम कर सकें और अपनी पेशेंट के बेनिफिट के एस्पेक्ट से नए इनिशिएटिव ले सकें। फार्मेसीज रिक्लासिफिकेशन एंड KPIs इंडोर्समेंट। सो एवरी ईयर वी हम फार्मेसीज की रिक्लासिफिकेशंस को हम सोचते हैं कि जी उसमें क्या क्या चीज़ें हमने गैप्स अब क्या हैं, और उनकी KPIs, अगर क्लिनिकल प्रोग्राम है तो उस KPIs में क्या एडिशन हो सकता है या क्या डिलीशन हो सकता है। उसका एक रिटेंशन टाइम तो है, बट हम KPIs को ऐड करने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास अभी एक्सपेंशन प्रोग्राम आगे भी बहुत सारा है, कि बहुत सारी सैटेलाइट्स में फार्मेसी सर्विसेज को एक्सपेंड करना है। तो हमारे लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को। तो एक्सपेंशन एंड कवरेज to all satellites and units. So we have to provide the same services to all our 10 hospitals and 26 plus testing units. I think this is all from my side. Now it's up to the moderator and the team. Thank you so much, sir. It was a wonderful session, and it was always pleasure to have people like you for these sessions. And I was really amazed by your achievements and the way जिस तरीके से आपने ये हासिल किया है and in a public sector hospital and without any call, जो कि जहाँ पे आप कोई रेवेन्यू एज सच नहीं ले रहे और इतनी अच्छी सर्विसेज आपने कर दी हैं, दैट्स वेरी कमेंडेबल सर. First of all, these are my comments for you. Thank you very Um, much. एंड दिस इज व्हाट मेरी तरफ से यही है कि जो लोग कहते हैं कि शायद हमें रिसोर्सेज की कमी है, बट द वे यू टोल्ड दैट देयर मस्ट बी अ डाटा कि आप कन्विंस करो लोगों को. तो दैट दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और इसी तरीके से हम तमाम लोग अपनी सर्विसेज को ऐसे ही इनहेंस कर सकते हैं. एग्जैक्टली। हम इसमें मैं थोड़े से वो करूँ, हमें रिसोर्सेज से ज़्यादा जो है ना विलिंगनेस की कमी है। हम खुद करना नहीं चाहते। हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई देखते कि यहाँ पे इतना बुरा हाल है, फॉर एग्जांपल कोई पुराना एक वो था कि जी दो बंदे अगर किसी जजीरे पे पहुंचे और वहां पे उन्होंने देखा कि जी यहाँ पे तो कोई जूते नहीं पहनता, नंगे पैर हैं, दो कंपनीज के लोग गए, और जब उन्होंने दूसरे ने कहा आके फीडबैक दिया कि भाई इससे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वहां पे तो कोई शूज नहीं पहनता, तो इट मींस वी कैन सेल अवर प्रोडक्ट ओवर देयर। तो फार्मासिस्ट के लिए तो ये पूरी ओपन फील्ड है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के, जहाँ पे वो तमाम काम कर सकता है। दैट्स गुड सर. मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन में कुछ सर 4-5 क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक, और तो उसके बाद जो है फिर हम ये करेंगे कि मिस सलवा को दावत देंगे कि वो इसको कंटिन्यू करें. मीनवाइल चैट्स को जो है मैं थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन कर देता हूँ वापस. अच्छा श्योर। सर, ये क्वेश्चन ये था, हाउ कैन, although you have explained it wonderfully, how can these actions be replicated in other hospitals, for example PIMS, that is a public sector hospital in Islamabad, uh, where resources are very scarce and use of technology is not much frequent. देखिए, सेम इश्यूज तो यहाँ पे भी थे, चाहे वो पेम्स हो, चाहे हम जिना की बात करें, सिविल की बात करें, किसी भी एरिया नाइट सिटी की बात करें, रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने, वही मैंने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है आपकी, जो लीडर फार्मेसी लीडरशिप है, वो अपनी हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कैसे कन्विंस करती है कि वाई फार्मेसी इज इम्पोर्टेंट एंड वाई दिस काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ फार्मेसी इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड फॉर द पेशेंट। तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डेटा डेटा कलेक्शन से, आपकी इस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से, इन्हीं चीज़ों से आप पहले आप अपना स्कोप सेल करते हैं कि जी हम ये कर सकते हैं, ये चीज़ें हम बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। नॉट नॉट नेसेसरली ऑल द टाइम कि आपको उसके लिए
मतलब रिसोर्सेज की या फिर कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़े। फॉर एग्जांपल इन पेशेंट सर्विसेज है या क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम, उसमें आपको क्या चाहिए? आपको स्किल्ड पर्सन चाहिए ना, फार्मासिस्ट चाहिए, दैट्स इट। आपको फार्मासिस्ट चाहिए जो कि क्लिनिकल फार्मेसी वहाँ पे क्लिनिकल राउंड्स कर रहे हैं। और आपको डेटा अगर कलेक्शन करना है तो वो तो गूगल फॉर्म के थ्रू भी हो सकता है। गूगल फॉर्म में आप अपना डेटा बनाए। आपने जब ये प्री एनालिसिस आपने कर लिया तो व्हाट यू कैन डू इज टू ओनली एंगेज द मैनेजमेंट और उनसे वो शेयर करना है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये चीजें हैं। और अगर हम क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम को इस तरीके से लॉन्च करते हैं और हमें एक दो रिसोर्सेज इस तरीके से मिल जाती है तो हम पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। पेशेंट ये जो रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है ये चीजें हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये चीज मतलब यू हैव टू प्रेजेंट ऑल दोज थिंग्स। उसमें जरूरी नहीं ऑल द टाइम यू मस्ट रिक्वायर बहुत आपको हैवी बजट चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए या रिसोर्सेज चाहिए। इट्स ऑल द एबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट कि वो चीजों को कर सकता है। Yes, sir. A good question. How do you identify and address medication errors or adverse drug events to prevent recurrence and improve patient safety, sir? देखिए ये तो बहुत वाइड स्कोप है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में डेफिनेटली आपके पास ट्रेसर्स होते हैं, मार्कर्स होते हैं। ये तो हर क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम का एक इन पेशेंट सेटिंग की बात करें तो उसमें ऑलरेडी मार्कर्स मौजूद होते हैं जिसमें आपने देखते हैं कि ये मार्कर एड्रेस हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन है तो उसके हिसाब से वर्किंग शुरू होती है। अच्छा, फार्मेसी मेडिकेशन रिकंसिलिएशन इज अगेन अ चैलेंजिंग इशू क्योंकि आपके पास जो पेशेंट इमरजेंसी के थ्रू एडमिट होता है तो आपके मेनी ऑफ द टाइम उसको, और हम जिस पेशेंट्स को इंटरटेन कर रहे होते हैं वो कोई इतना एजुकेटेड पेशेंट नहीं है। उसको मेडिकेशन उसको खिलाने वाला कोई और होता है। समटाइम्स उसको अपने मेडिकेशन की नॉलेज नहीं होती। और इसके साथ एलोपैथी भी, एलोपैथी के साथ आपके होम्योपैथी, हिकमत, आमिल, सुल्तानी बाबा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें और अटैच होती हैं। इट्स नॉट द सिंपल मेडिकेशन जो अगर हम उस एस्पेक्ट में रिकंसिलिएशन के एस्पेक्ट की बात करें कि पेशेंट की हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री को अगर हमने एड्रेस कर लिया है, बहुत रेयर होता है हिस्ट्री एट दैट टाइम। लेकिन हाँ, दिस इज द सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस कि मेडिकल मेडिकेशन रिकंसिलिएशन को और ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारे पास रिपोर्ट होता है डेफिनेटली और उसको सेंट्रली भी रिपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा हमारा प्रोविजन बन नहीं सका है। बट वी आर ट्राइंग कि अगर हम इसको फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम जो हमने इनिशिएट किया अभी तो इंशाल्लाह होपफुली बाय क्वार्टर, बाय नेक्स्ट क्वार्टर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह वी वुड बी इन बेटर वे कि हम इसको सही तरीके से फॉर्मुलेट कर सकेंगे और शेयर कर सकेंगे। Thank you so much, sir. We are also running short of time, and there are some comments, जो कि mostly related to the training and residency programs, etc. के हवाले से हैं. I would like to answer those questions in the end by myself, and कुछ शिफा के related questions हैं. I would request Ms. Salwa Ahsan, the Chief of Pharmacy of Shifa International Hospital, to please provide her remarkable comments for this good session by Dr. Gibran, and if Ms. Salwa is there. Thank you very much, John. Can you hear me? Yes, ma'am, we can hear you. Okay, Ji, thank you very much, Gibran bhai. It's always a pleasure and remarkable experience when we listen to whatever you are achieving. और डेफिनेटली इस सेशन को कंडक्ट करने का जो प्राइम मकसद था वो ये था कि समटाइम्स वी फील दैट कि देयर इज अ काइंड ऑफ डीमोटिवेशन सीपिंग इन आवर यंग फार्मासिस्ट. They feel like that there is no scope or no work or no worth of the pharmacist in the community or hospital setup. So partly the reason of arranging these kind of sessions with people like you, leaders like you in the profession, is that just to showcase that what a pharmacist can bring towards the community, towards the healthcare professionals and patients. कैसे वो अपनी worth prove कर रहा है, करता है, और what difference he or she can make. So thank you very much for highlighting all the good work that you are doing. और इसमें जो second जो message communicate करना मकसद था इस session का वो ये था कि the first part was for the young pharmacist, but the second part is for the practicing pharmacist.
जो अपने अपने एरियाज के अंदर जो है एक स्टेटस को के अंदर आ गए हैं एंड दे थिंक के हम बियॉन्ड नहीं जा सकते ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड मेनी अदर लिमिटेशंस वी कैन नॉट चेंज द वे वी आर वर्किंग बट टू शोकेस दीज काइंड ऑफ अचीवमेंट्स एंड सक्सेस स्टोरी उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि यस यू कैन ब्रेक द स्टेटस को and you can always strive for the best practices and standards. So thank you very much. I really thoroughly enjoyed your session and really thankful to you that you accepted to be the presenter for this session today. Thank you. Thank you, Salwa. बहुत शुक्रिया, and I'm sure कि Shifa International is lucky to have you, such a wonderful potential pharmacist and a wonderful leader. तो आई एम श्योर कि आप ये तमाम इस रीजन में और बाकी अपने हॉस्पिटल में और बाकी रीजन में, एंड यू हैव अ वेरी गुड वर्किंग विद द ग्रैप एज वेल। तो होलिस्टिकली आप जो है जिस तरीके से आप काम कर रही हैं वो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली सब जगह नजर आएगा। Thank you. जी रेहान, over to you. मैम एक क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन अगर मैं ले लूं, though we have closed it, but there was a question that what were the challenges that you have faced in developing this kind of ecosystem of pharmacy in public sector, and what are your big bets for the upcoming year or two? Question for me? Yes sir, it's for you. अच्छा देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि माइंडसेट को चेंज करना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप पब्लिक सेक्टर में फार्मासिस्ट क्या कर सकते हैं। फार्मासिस्ट तो सिर्फ दवा देने वाला आदमी है, बस आपका काम सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ आप दवा गिनो और बस वो दे दो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस माइंडसेट को चेंज करना, ये हमारे पास बाहर सारे ये जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर डॉक्टर्स हैं, इंटरनेशनली ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, जो कि बाहर फार्मेसी प्रैक्टिसेस को देखते हुए आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके फिर जो है एकदम अपना माइंड क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि नहीं, आई नो एवरीथिंग। तो वहाँ पे उसको इंटरवीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ग्रेजुअली अगेन ये देखें, बहुत ये सेट ऑफ वर्किंग है, सेट्स ऑफ वर्किंग है कि जी आपने क्या ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से आपने 1 2 3 स्मॉल स्टेप्स आप लेते गए और उसके बाद अपनी जो है विजिबिलिटी को बढ़ाते चले गए। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं कि उनको फार्मेसी की या फार्मासिस्ट की इम्पोर्टेंस नज़र आना शुरू करें। तो जब आप, अच्छा, विजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब इम्पैक्ट शो करते हैं, जब आप देते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकेशन लेबलिंग, अगर फॉर एग्जांपल जो दवा वैसे ही जा रही थी और दवा जो है रीसेबल बैग में और उसके ऊपर लेबल्स हैं और पेशेंट भी खुश जा रहा है, हाउ ही और शी कैन टेक द मेडिकेशन अकॉर्डिंगली, तो वो भी बड़ा इम्पैक्ट करता है इन चीज़ों को। और फिर इनको भी बताना जिस उसमें होते हैं कि जी हमारी फार्मेसी ये कर रही है और हमारे पास, अच्छा, डेटा जो हम शेयर कर रहे हैं वो फिजिशियन को शेयर कर रहे हैं, जो कि उनकी पब्लिकेशन में भी हेल्प कर रहा है। मीन्स हम तो हर जगह उनको हेल्पिंग हैंड कर रहे हैं। तो आहिस्ता 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 जो है अपनी अपनी पोजीशन को, हमें बहुत सेटबैक्स मिले। हमें तो वार्ड से फार्मासिस्ट को निकाल दिया जाता था कि नहीं, मेरी ऐसी चीज़ को आप छेड़ नहीं सकते, मेरी डोज को आपको नहीं छेड़ सकते, आप यूँ नहीं कर सकते। ऐसे भी सेटबैक्स शुरू में मिले, बट हमने उनके ऑफिस में जाके उनसे डिस्कस किया, उनको चैलेंज किए, नहीं किया। हमने कहा सर अच्छा आप बताएं, हमें वेज बताएं कि हम आपके पेशेंट को किस तरीके से वो कर सकते हैं। हमारे पास ये रेफरेंसेस मौजूद हैं जिसके अकॉर्डिंगली इसको ये मिलना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो काइंडली वो प्रैक्टिस शेयर कर लीजिए, और आपके पास डेटा है तो वो शेयर कर लीजिए। वंस यू टॉक अबाउट द डेटा शेयरिंग, अगर फिजिशियन से भी हम पूछते हैं कि ठीक है आपके पास ये है तो व्हाई डोंट यू शेयर योर डेटा विद अस, तो वो बिल्कुल समझता है कि नहीं, यू आर टॉकिंग विद अ नॉलेजेबल पर्सन, तो फिर वो थोड़ा सा डिफेंसिव होता है। अच्छा, गोल्स हमारे यही हैं कि हम और आगे की तरफ हम इनोवेशंस की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारा जो नया एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 ईयर 5 ईयर्स, उसमें हमने जो फार्मेसी प्रैक्टिस का मॉडल जो दिया वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो टोटली रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पर है, और फार्मासिस्ट को हमने बिल्कुल अपनी विंडोज से और इन चीज़ों से हटा के हमने सिर्फ क्लिनिकल एरियाज की तरफ हमने वो किया। वो बिल्कुल मॉडल, बिल्कुल स्कोप बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इफ यू टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड, तो हमने उसको डिप्लॉय करने की कोशिश की है। होपफुली, पता नहीं मेरी जिंदगी होती नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह जब वो हॉस्पिटल फॉर्म होगा तो वो बहुत ही डिफरेंट होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट बनेगा। Thank you so much sir for this wonderful session. People are enjoying it and there are a lot of questions.
but due to lack of time, inshallah, we will ask you to have your time some other day as well. Sure, Rehan. Thank you very much. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया and all pharmacists सबका बहुत शुक्रिया. Yes, sir. So many. हाँ, just अगर मैं आपको सिर्फ एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूं, there are so many questions, जिब्रान भाई, regarding internship opportunities at NICVD. तो अगर आप एटलीस्ट इसको आंसर कर दें. So we are entertaining all the internships. हम सारे trainees almost कोई हम in short length अभी 2000 plus हम trainees हम कर चुके हैं, लेकिन हम वो stipend नहीं दे सकते. हम 300 hours 100 hours depending upon the need वो हम वो कर सकते. तो हम हर यूनिवर्सिटी को ऑल यूनिवर्सिटीज इंटायर पाकिस्तान किसी को भी इंटरटेन कर सकते हैं. हम ओपन है बिल्कुल. एनीवन इज इंटरेस्टेड टू वर्क हियर, इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है, दे कैन कांटेक्ट अस. मैम, अब आप शिफा का भी एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि अक्सर शिफा का भी पूछ रहे हैं. I guess Ran, you are the best person to explain. तो आप internship और residency दोनों briefly explain कर दें, ताकि क्योंकि काफी questions इससे related भी थे. Okay, there were many questions जो कि वो पूछ रहे हैं कि हम fresh graduate हैं, हमारे लिए trainings होनी चाहिए, क्या होना चाहिए. The best thing is कि जब भी आप आगे move करना है, तो आपने अपनी competency enhance करनी है, अपने knowledge enhance करना है, अपने education enhance करनी है. तो ये होगा कैसे? तो पहले तो शायद इतने इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, लेकिन अब बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, जैसे अभी डॉक्टर जिब्रान ने बताया. ऐसे ही हम एट शिफा हम जो है डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे दो तो बहुत ही नाउन है. हम 6 वीक्स का जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जो कि सिर्फ हम ग्रेजुएट जो लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम इंटर्नशिप प्रोग्राम देते हैं, सिर्फ ग्रेजुएट्स को. क्योंकि हमारा जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम है, दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम that involves a specific learning objectives along with activities with preceptors. तो हर वो चीज़ तो वो सिर्फ जो है वो ग्रेजुएट्स के लिए है. तो स्टूडेंट्स, there is no program for the students right now, but we are trying to have some kind of observerships for the student as well. लेकिन अभी जो हमारा internship program है, that is for graduates. Moreover, हमारे पास जो है वो एक annually जो है हमारा एक residency program है, that is SHP, IPPRP, इंटरनेशनल फार्मेसी प्रैक्टिस रेजिडेंसी प्रोग्राम. हम उसको जो है वो 1 ईयर का एक स्ट्रक्चर्ड रेजिडेंसी प्रोग्राम है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हो रहा है. और उसमें जो है हम एनुअली इंडक्शंस कर रहे होते हैं. यूजुअली अक्टूबर नवंबर में हम उसकी अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं. हमारे साथ आप जो है वेबसाइट को विजिट करें, तमाम तरह के जो फार्मेसी अपडेट्स के जो ईमेल्स होती हैं हमारे पास, हम उसके ऊपर भी वो शेयर कर देते हैं. और उसमें हम स्ट्रक्चरली ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे थे. मोर ओवर हम जो है डिफरेंट तरह की वर्कशॉप्स करते हैं. हमारी एनुअल मेडिकेशन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस आती है, वहाँ पे भी हम ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं. हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट के साथ हम अपना सेशंस कर रहे हैं कि हम वहाँ जो अभी हम इस्लामाबाद में हैं, तो हम इस्लामाबाद की कम्युनिटी फार्मासिस्ट को ट्रेन करें. वी हैव आल्सो इन प्लान कि हम जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी को भी इनरोल करें. एंड वी आर वेलकम एवरीवन ऑफ यू, इफ यू वांट टू विजिट अस, इफ यू वांट टू हैव सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम अस, तो आप हमें drug.information@shifa.com.pk पे लिखें, तो इंशाल्लाह हम आपको उस पर सपोर्ट करेंगे. सो होपफुली आई हैव आंसर्ड मेनी ऑफ योर क्वेरीज. So thank you again, sir, for this wonderful session, and now we will close. I will see if there are any other questions that could be answered by me, like not related to the sir. People might be interested to contact NICVD, and might be they could find the email link at the website. Yeah, sure. Thank you, sir. They can email me. Thank you very much, audience, and thank you very much, Rehan, Salpa, and every pharmacist. Thank you. Thank you.